Everyone, welcome back. So today we shall be starting off with a new chapter, chapter number 13, that is photosynthesis in the higher organism, the higher plants. All animals, including human beings, depends on the plant for their food. We all know that we require a plant for our food. Like if suppose we are having some, say, ketchup, that also comes from tomato, which also comes from the plant. So everything that we consume eventually comes from the plant. Have you ever wondered from where this plant get their food? So basically, where does this plant get their food? Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need, and all other organism depends on them for their food. All the organism, for example, if we talk about a food chain, so when we talk about a small grasshopper which is eating suppose a grass, and then only it's having the energy. The grasshopper is then on passing the energy, that is a frog is been eating the grasshopper, so the energy of the plant is only transferring, fine, and the frog is then being eaten by a snake, and the snake being eaten by a vulture, say. So basically the food comes from where? From the plants, fine. The green plants make or rather synthesize the food. ग्रीन प्लांट की जब हम बात करते हैं तो उसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. क्यों ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं? ऑटो मतलब में सेल्फ, ट्रॉप मीन्स प्रिपेयरिंग, सो प्रिपेयरिंग बाय देमसेल्व्स. वी कैन नॉट सेंड इन सन एंड मेक आवर फूड. नो, वी आर नॉट एट ऑल एनी काइंड ऑफ जादू दैट वी कैन मेक आवर फूड. So basically they make their plant has the capacity to make their own food, and that is why they are termed to be as autotrophs. So basically you have learned about the autotrophic and the heterotrophic mode of nutrition in the previous class, fine. Heterotrophic organism are the organism which rely on the autotroph for their food requirement. Green plant ऐसे क्या चीज़ करते हैं जिनकी वजह से वो फूड बना सकते हैं अपने बॉडी में? तो बेसिकली वे परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस. तो उसका मीनिंग क्या होता है? फोटो मतलब में लाइट और सिंथेसिस मतलब में फॉर्मेशन. सो फॉर्मेशन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट has been quoted as photosynthesis. Find a physiochemical process. वो ऐसी physiochemical process है which they use the light energy to drive the synthesis of organic compound. सो फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लो जैसे कि C6H12O6, ये बनाने के लिए उनको क्या लगता है? तो दे रिक्वायर सनलाइट. क्या यूज़ करते हैं? वे सनलाइट का यूटिलाइजेशन करते हैं, फाइन. एंड देन एंड ओनली दे आर एबल टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फाइन. फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन्स. फोटोसिंथेसिस भाई क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं होगा, तो इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स. तो सबसे पहला रीज़न है इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, फाइन. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. जब अब हम बोलते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होती है, हाँ भाई, तो उसकी ही प्रोसेस से CO2 कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? ये फूड नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? तो वी कैन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस. That is the reaction which takes place in the plant photosynthesis, fine. Now this chapter basically focuses on how does photosynthesis occur, what is its machinery, how does various chemical reaction takes place. Before studying and moving to the actual photosynthesis, we shall just go through some of the key points. So what do we know about basically the photosynthesis? Let us try to find out. We have already known about photosynthesis. ये सारे experiments जैसे कि 10th में आपने कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे. Some simple experiment you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, which is a green pigment ऑफ द लीफ. क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट है लीफ के अंदर. लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर. यस, ये आप सबको पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, पानी चाहिए, फाइन, वाटर. सो बेसिकली यस, दैट इज क्लोरोफिल, लाइट, CO2 एंड वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, आप याद रखना. You may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that was partially covered with black paper. So basically variegated leaf आपने देखे होंगे, जैसे कि कहीं जगह पे white क्रोटॉन का ले लो लीफ. तो जो क्रोटॉन का लीफ होता है उसमें क्या होता है कि some places are white, कुछ कुछ जगह वाइट होती है और दूसरी ग्रीन होती है, फाइन. तो वही चीज़ है कि उसका जो लीफ होता है वो वेरीगेटेड बोला जाता है, फाइन. तो हमने वो क्लास 10
10th में एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि 2 पॉटेड प्लांट को, जैसे कि लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज्ड टू लाइट. On testing these leaves for the presence of starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of the leaves in the presence of light. So basically क्या किया गया था, जैसे कि जो लीव्स थे उनको प्लग किया गया, लीव्स को प्लग करके फिर सनलाइट में रखा गया. तो सनलाइट में क्या होगा कि भाई वो क्या करेगी, वो फोटोसिंथेसिस करेगी. अब जो फोटोसिंथेसिस पॉटेड प्लांट को रखा गया सनलाइट में, फिर उनमें फोटोसिंथेसिस हुई, फिर उनको प्लग कर दिया गया. प्लग करने के बाद उनको बॉईल कर दिया गया. फिर बॉईल करने के बाद हमने देखा अल्कोहल में बॉईल कर दिया गया. फिर उससे क्या हो जाता है, क्लोरोफिल जो होता है वो सारा डीजनरेट हो जाता है. फिर बॉईल करने के बाद हमने देखा उसके ऊपर हमने क्या डाला, स्टार्च डाला. तो हम क्या देखेंगे, समझ लो 2 तरह के लीव्स होते हैं. जैसे कि एक पूरा ग्रीन लीफ जिसको कवर कर दिया था हमने, इतना ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था. फाइन, तो इस रीजन में फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, बाकी 2 रीजन में फोटोसिंथेसिस होगा. जब आप इस पर स्टार्च डालेंगे, क्या करेंगे, स्टार्च डालेंगे. फाइन, इसके ऊपर आयोडीन डालेंगे. किसका सोल्यूशन डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे. तो आप क्या देखेंगे कि ये जो 2 जगह है जहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ था, आयोडीन डालने पे ये दोनों जगह ब्लू ब्लैक हो जाती है. तो ब्लू ब्लैक क्यों हो जाती है, बिकॉज ये ब्लू ब्लैक तभी होती है जब इनके अंदर स्टार्च बना होता है, बिकॉज स्टार्च एंड आयोडीन रिएक्ट्स विथ ईच अदर. स्टार्च और जो आयोडीन होता है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स. फाइन, तो बेसिकली स्टार्च जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है इस जगह पे, वहाँ आयोडीन रिएक्ट होगा और ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा. वैसे ही ये जो टेप होती है वो निकाल दो और इधर आयोडीन डालने पे कोई रिएक्शन नहीं देखी जाती, कोई कलर चेंज नहीं देखा जाता. तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये जो जगह थी उधर स्टार्च बना ही नहीं है, क्योंकि इट वॉज कवर्ड, इट वॉज नॉट एबल टू टेक द सनलाइट. फाइन, इवन दो इट पोजेस्ड क्लोरोफिल. वैसे ही ये वेरीगेटेड लीफ है, उसमें भी हम कर सकते हैं कि भाई जो वाइट पोर्शन होता है उस वाइट पोर्शन पे आप जब आयोडीन डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा. बट वही सेम चीज़ आप इसी पोर्शन पे, जो ग्रीन पोर्शन होता है उसमें वही सेम एक्सपेरिमेंट करना है कि भाई वो लीफ को, वो प्लांट को हमने लिया, उसको रखा सन में, फोटोसिंथेसिस हुआ, प्लांट के इस लीफ को प्लग करो. प्लग करने के बाद इनका जो वाइट, उनको बॉईल करो, वाटर में बॉईल करो, फिर अल्कोहल में बॉईल करो, किसी कंटेनर में लेके अल्कोहल में बॉईल करो, उससे पूरा क्लोरोफिल वगैरह डीजनरेट हो जाएगा. फिर उसके ऊपर आयोडीन डालो. जब इनके ऊपर आयोडीन डालोगे तो देखेंगे कि जो वाइट पोर्शन था वो वाइट पोर्शन वैसा का वैसा रहता है, पर जो ग्रीन पोर्शन होता है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, विच शोज दैट द ग्रीन पार्ट वॉज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, वॉज एबल टू प्रोड्यूस स्टार्च. ग्रीन पार्ट जो होता है वो स्टार्च प्रोड्यूस कर सकता है. फाइन, CO2, वाटर, सनलाइट, द नेक्स्ट थिंग विच इट रिक्वायर्स इज से क्लोरोफिल. फाइन, उसको साथ ही साथ क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए. फाइन, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो उसको चाहिए. दूसरा हमने क्या देखा कि भाई जो ग्रीन पार्ट होता है, फाइन, द ग्रीन पार्ट इज ओनली एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दूसरा कोई पार्ट है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, पर जो ग्रीन पार्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है. फाइन, अभी तक हमने ये देखा. Suppose say talking about the next experiment, that is an experiment which concludes, we have already studied this in the 10th standard, wherein an experiment which tells you that CO2 is necessary for photosynthesis. अगर CO2 नहीं होगा तो photosynthesis नहीं हो सकता. ये चीज़ हमने already 10th में पढ़ ली है, but we'll just have a quick look at it. जैसे कि ये एक KOH वाला एक्सपेरिमेंट है जिनमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए. तो बेसिकली आपको एक पॉटेड प्लांट चाहिए, KOH सोल्यूशन चाहिए, फिर आपको उसके लिए रबर कॉक चाहिए वगैरह वगैरह. आपको मटेरियल्स भी बताए गए हैं इधर. यस, दिस आर सम ऑफ द मटेरियल्स विच आर बीन रिक्वायर्ड. सो टेक अ पॉटेड प्लांट. इस प्लांट को हमें क्या करना है, अच्छे वाले प्लांट को हमें नैरो लीव्स लेंगे तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हमारे लिए कंडक्ट करना ईजी हो जाएगा. इसको हम रख देंगे अंधेरे में. अंधेरे में क्यों रख देंगे, क्योंकि अंधेरे में रखने से उसके अंदर जो स्टार्च होगा वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा. अब स्टार्च 3 दिन तक रखो तो
शायद जितना भी फूड है वो सारा प्लांट का ख़त्म हो जाए। अब प्लांट का फूड ख़त्म हो गया है तो क्या मतलब में फ्रेश स्टार्ट होने के लिए हम ऐसी चीज़ करते हैं कि भाई उसमें कुछ भी फूड ना बचे। फिर उसको 3 दिन बाद सपोज आप निकाल लो। फिर निकालने के बाद व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपने एक छोटी सी 5 to 6 ml ऑफ KOH सोल्यूशन आपको लेना है और इस जो ट्यूब लाइक जो ग्लास जैसा है उसके अंदर आपको उसे पोर करना है। फाइन। और फिर आप देख सकते हो रबर कॉर्क की मदद से हमने क्या किया, आधा लीफ जो है वो बाहर की तरफ रखा और आधा लीफ जो है हम ग्लास बॉटल में इंसर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस ग्लास बॉटल के अंदर क्या है, KOH का सोल्यूशन है। फाइन। तो आप देख सकते हो रबर कॉर्क की मदद से हमने आधा लीफ बाहर रखा है, आधा लीफ अंदर की तरफ है। फाइन। एंड नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई ग्रीज ऑन दिस। ग्रीजिंग करने से क्या होगा कि एयर जो है वो ज़रा भी अंदर नहीं जाएगी। आप किसी की चीज़ वैसलीन वगैरह से ग्रीजिंग कर सकते हैं बॉटल की जो कॉर्क होता है उस पर। अब इसको क्या करना है, इस पूरे सेटअप को हमें लेके आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है, जिसमें आधा लीफ अंदर की तरफ, आधा लीफ बाहर की तरफ, ये वाला आधा लीफ है जो। अब इसी सेटअप को हमें कहाँ रखना है, लाइट में रखना है 4 to 5 आवर्स तक। तो क्या होगा, लाइट मिलेगी उसको, बाहर CO2 है। फाइन। उसके अंदर क्लोरोफिल है तो वो फूड प्रिपेयर करना चालू करेगा। फाइन। बट हियर व्हेन यू सी दिस बॉटल, उसके अंदर क्या है, KOH। तो इस बॉटल के अंदर KOH की क्या प्रॉपर्टी होती है, KOH की प्रॉपर्टी होती है कि वो CO2 को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होने वाला है, CO2 जो होगा वो इसमें ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस बॉटल के अंदर वाला जो लीफ है उसको तो क्या नहीं मिलने वाला, उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने ही नहीं वाला। फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि बॉटल के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो सारा KOH सोल्यूशन ने ऑब्जॉर्ब कर लिया। तो इस लीफ ने फोटोसिंथेसिस लाइट में रहने पर भी किया कि नहीं किया, वो हम आगे टेस्ट करने वाले हैं। तो उसको टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसी लीफ को हम प्लग कर देंगे। ये लीफ को प्लग किया, जैसे मैंने आगे मेथड बताई वैसे ही आप, ये वाटर बीकर है, वाटर बीकर के अंदर ये जो छोटा सा टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर अल्कोहल है और उसके अंदर लीफ को डाला गया है। डायरेक्टली अल्कोहल को हम हीट नहीं करते वरना ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए ऐसे करके हम उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। फाइन। और बॉईल करने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, बॉईल करने से क्या होता है, सारा क्लोरोफिल डीनेचर हो जाता है। अब इसके ऊपर हमने क्या डाला, आयोडीन का सोल्यूशन डाला पूरे उसके ऊपर, लीफ के ऊपर। तो आप देखेंगे कि इतना वाला जो पार्ट था वो ग्लास बॉटल के अंदर था और वो जो पीछे वाला था वो बाहर था। तो इसको CO2 नहीं मिला है क्योंकि CO2 तो KOH ने अब्जॉर्ब कर लिया है, बट इसको तो CO2 मिला है जो बाहर था वो पार्ट ने। फाइन। तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जिस पोर्शन में जो बाहर वाला पोर्शन था उसको, उसमें क्या हुआ है, स्टार्च फॉर्म हुआ है। तो स्टार्च बना है मतलब में ये आयोडीन डालने पे ब्लू ब्लैक हो जाएगा। और आगे वाला पोर्शन जो अंदर की तरफ था जहाँ CO2 का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, सॉरी स्टार्च का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, जहाँ CO2 नहीं था, CO2 नहीं था, KOH ने ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो ये वाला पोर्शन वैसा का वैसा कलरलेस रहता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर व्हाट, CO2 इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी, दैट इज लाइट इज नेसेसरी, पहला सबसे चीज़ हमने ये देखा। फाइन। तो लाइट वाले में भी सेम हमें करना है, उसको 3 दिन के लिए, जैसे ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट है, उसको 3 दिन के लिए पॉटेड प्लांट को रख देना है। फिर उसके बाद हमें वापस उसको लाइट में रखना है, फिर लाइट में रखने के बाद वो लीफ को प्लग करना है, वही सेम एक्सपेरिमेंट करना है और देखेंगे कि फूड प्रिपेयर हुआ है कि नहीं। तो जो पोर्शन कवर्ड था, फाइन, उसको लाइट नहीं मिली है, उधर फूड प्रिपरेशन नहीं होगा। तो लाइट इज नेसेसरी। वैसे ही हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा जहाँ हमने देखा CO2 is necessary. We shall in the coming classes shall understand about some of the historical events that has taken place in the field of photosynthesis before moving to the actual process of photosynthesis. So this is all for today. We shall be meeting in the next class.